Hello my dear students, how are you all? I hope you are fine. As you see on the screen, the today's topic is still we are on the third chapter playing with numbers. You will be bored. Sir, again we are studying third chapter only. Don't be bored, beta. Now we are in the next topic. Next topic is, as you see on the screen, it is SCF, LCM and prime factors. Prime factors, SCF, LCM will study. Okay. See, prime factors, LCM and HCF. We'll be studying. Next topic is prime factors, LCM and HCF. We'll be studying by seeing some examples or some questions. I will explain you what is SCF, LCM and prime factor. SCF is highest common factor. LCM is least common multiple. LCM है वो least common multiple. SCF is highest common factor and LCM is least common multiple. And what is prime factor? We'll see some example, then I will explain you what is prime factor. Let's see some example on the green board. Come. आगे सब लोग. Now we will see some examples on prime factor. What is prime factor? How we have to do the prime factorization? See, there are two methods are there prime factorization. One is tree method and one is normal simplify method. See, first we will see tree method. This is 20. We have to find out the factors of that with the form of tree, making a tree. This is a tree. 20 can have factors 2 or 10. Yes or no? You have to tell the answer. Yes, no? Right? Okay. Now we have to take factors of 2. 2 के factors again 1 and 2, so we will not take. Factors of 10. 2 and 5. So 2 के factors और हो सकते हैं नहीं. 5 के हो सकते हैं नहीं. So this is a prime factor tree of 20. One more example I will explain you. This is 24. Factor tree of 2, 24, 2 or 12. 2 or 12 will be the factor of 24 or not. You have to tell yes or no. I can't hear you. Yes, right. Now 2 can be divided over factors. नहीं हो सकते. 12 के हो सकते हैं. 2, 6. अब next 2 के हो सकते हैं? नहीं. 3 के हो सकते हैं? Yes? No? Yes. 2 and 3. अब हो सकते हैं 3 और 2 के? Loud, I can't hear you. Yes or no? Yes, right. नहीं हो सकते. So this is the factor tree of 24. So we have studied tree method of prime factor. Tree method of prime factorization. Prime factorization अगर tree method बोला जाए कैसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. Normal method में बताता हूं. जैसे 20 है, ऐसे आपने किया 20. Start from the small number. इवन का इवन नंबर से ही जाएगा और ऑड नंबर से ही कटेगा. लेकिन आपको स्टार्ट हमेशा छोटे नंबर से करना है. कहां से करना है? स्मॉल नंबर से. अब इसको हम डायरेक्ट टेंस तो काटेंगे नहीं, 20 तो काटेंगे नहीं. 2 से जा सकता है ना. 2 1 2 0. अब ये भी 2 से जा सकता है. 2 5 जा. अब दिस 5 can't be divisible by 2, 3 और 5. So directly we will use 5. तो 1 आ गया. So at the end you have to get 1. आखिरी में आपके 1 आना चाहिए. आखिरी में आपको क्या आना चाहिए? 1. सिंगल 1. सो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 5. सो ये आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे. इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम सीखेंगे क्या? SCF ऑफ LCM. SCF एंड LCM. प्राइम फैक्टर सबको समझ में आ गया? श्योर? पक्का ना? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? श्योर? चलो लेट्स मूव. नाउ वी विल सी SCF. अब देखो SCF क्या होता है? SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. SCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो बिल्कुल सबसे बड़ा हो और कॉमन आ रहा हो, सिमिलर आ रहा हो, सब में बड़ा हो और कॉमन आ रहा हो. जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, आप मान लीजिए 20 और 24, 20 और 30 ले लिया मैंने. ठीक है, 20 और 30. अब मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा. अब इसमें एक चीज है, SCF आप अलग अलग नंबर्स के करोगे. अगर 2 नंबर दिए हैं तो उनका अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालोगे. क्या निकालोगे? अलग अलग, सेपरेट. 20 और आप कर लीजिए 24 इज ओके. 24. सो 2 10, 2 5 5 1. और 24 का क्या होगा? 24 का 2 12, then again 2 6, then 2 3 3 1.
So these are the prime factor of 20 and these are the prime factor of 24. Now we will take common. See, 2 multiply 2 multiply 5, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, ये आ गया 24 का फैक्टर और ये आ गया 20 का फैक्टर। अब इसमें कॉमन निकालना है। इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 1 2, इधर भी 1 2, यहाँ 2 लिख लिया और 1 2, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? एचसीएफ में आपको अलग अलग करना होता है, अलग अलग करने के बाद उनके प्राइम फैक्टर निकालने के बाद लिखना होता है, उसके बाद कॉमन निकालना होता है। अब इन दोनों में दो 2 है तो 1 2 लिखेंगे, इधर भी कॉमन आ रहा है तो 1 2, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर दी हो जाएगा 4। फिर से बोल रहा हूं, आपको 2 नंबर दिए, मान 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी, अलग अलग निकालिए। अलग अलग निकालने के बाद उसके प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद कॉमन निकालिए, ठीक है? कॉमन निकालने के बाद जो कॉमन आएगा जितना उसको मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोर तो नहीं हो रहे ना? नींद तो नहीं आ रही ना? पक्का ना? श्योर? समझ में आ रहा है ना? बता दीजिए अगर बीच में नींद आए, पक्का समझ में ना आए, कुछ भी आ गया ना? डन? सो नाउ विल मूव टू एलसीएम। नाउ विल मूव टू एलसीएम, दैट इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, फैक्टर नहीं, मल्टीपल। ये होती है गलती, मेरे से भी हो जाती है कभी कभी गलती कि एलसीएम को मैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देता हूं या लीस्ट कॉमन फैक्टर बोल देता हूं, बट वो एम है लास्ट में, एफ नहीं है। इट इज मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या नंबर लिया था? 20 और 24। अब मुझको अलग अलग नहीं करना है, मुझे एक साथ एलसीएम निकालना होता है हमें एक साथ। एलसीएम निकालना होता है हमें एक साथ। जैसे मैंने लिया 20 और 24, एक साथ करते हैं, एक साथ कंबाइन, कितने भी नंबर हो, 10 15 20 25, एक साथ निकालेंगे सबका। अब ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से 10, ये भी 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 5, अब ये भी 2 से जाएगा 6। अब इन दोनों में ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये जाएगा, तो करेंगे जब तक 2 से एक नंबर कोई ना कोई नंबर जा रहा है तब तक करते रहेंगे। 3, अब 2 से कोई नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, ये 3 पे आएंगे 1। अब 5 से जा रहा है ये, तो 1 1, लास्ट में 1 1 मिल गया ना? मैंने क्या कहा था, लास्ट में क्या आना चाहिए? 1, चाहे वो एचसीएफ हो, चाहे प्राइम फैक्टर हो, चाहे एलसीएम हो, 1 आना चाहिए। ठीक, आप देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, सो 3 2 है, एक 3 है और एक 5, 2 4 8, 8 5 40 and 43 120. See, 2 2 4 4 2 8, 8 5 40 and 43 you can do it. 43 multiply it, 120 आंसर। ओके, सो एलसीएम में क्या करना होता है? आपको कंबाइन करके करना होता है। कैसे करना होता है? कंबाइन करके। और एचसीएफ में अलग अलग। अब मैं आपको एक ट्रिक समझा दूं, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, जहां कहीं भी आपको मैक्सिमम लिख के आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम को याद ध्यान समझिएगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ और एलसीएम कैसे पहचानना है, कैसे निकाला जाता है, ध्यान समझिएगा। जहां कहीं भी मैक्सिमम लिख के आ जाए, मैक्सिमम, वहां एचसीएफ, और जहां कहीं भी वेर एवर इट इज रिटन मिनिमम, मिनिमम लिख के आ जाए, वहां एलसीएम। अगेन आई एम सेइंग मैक्सिमम इक्वल्स टू एचसीएफ और मिनिमम इक्वल टू एलसीएम। ये लिख के आ जाए तो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कहां एचसीएफ और कहां एलसीएम निकालना है। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टर, ट्री मेथड, एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू फेस एनी डाउट in the word problem, doing the word, I know that you will be facing some problem in the word problem. कुछ प्रॉब्लम आपको आएंगी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट मैक्सिमम हो जाएंगी क्योंकि मैंने आपको ट्रिक समझा दी, मैक्सिमम एचसीएफ, मिनिमम एलसीएम। फिर भी आता है तो विल डिस्कस इन द लाइव क्लासेस। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।